स्मॉल स्केल कंपनी को 5 साल में मिड साइज तक पहुंचना है, तो उसको क्या फाइनेंशियली चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए और क्या चीजें छोड़ देनी चाहिए? 5 साल में अगर आपको स्मॉल से मिड साइज में जाना है तो यू विल हैव टू How the mid-sized person or a 100 crore company founder thinks about money? 100 crore company founder thinks about money as an incidental reward. He will first think about what the customer should perceive my brand as. He will create a vision for that. अगर वो vision उसने achieve कर लिया तो money is going to flow. Because at the end of the day, people will invest on their perception about you. और उसी से पैसा बनेगा. One of the critical pillars of business is people. So people aligning with the strategy of the owner is very important. अगर आप कल से सोचने लगे कि आप एक 100 करोड़ की कंपनी हो पर आपका एम्प्लॉय आज भी 5 करोड़ की कंपनी की तरह ही सोच रहा है, तो आप कभी 100 करोड़ बन नहीं पाओगे, क्योंकि आप जाके हर काम तो नहीं कर सकते. काम तो उसी से करवाना है आपको. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ इज दैट इंडिविजुअल पर्सन इंपॉर्टेंट टू द कंपनी एंड हाउ इज कंट्रीब्यूशन इज क्रिटिकल. ये अगर आप उसको कन्विंस कर पाए तो ही उसका माइंडसेट बदलेगा. इन सब में कंपनी ने CFO कब रखना चाहिए? मेरे हिसाब से कंपनी ने CFO डे 1 से रखना जरूरी है. लोगों को लगता है कि CFO इज अ कॉस्ट. आई बिलीव एनीबडी हु हैज क्रॉस्ड एटलीस्ट द 1 करोड़ टर्नओवर मार्क शुड मैंडेटरली हैव अ CFO. वेलकम बैक. इन लास्ट एपिसोड हम लोगों ने देखा बिजनेस फाइनेंस का ओवरव्यू. तो ये आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि एक 100 करोड़ वाली कंपनी या फिर एक कंपनी जो मिड साइज में है, स्मॉल स्केल से निकल के मिड साइज तक पहुंच गई है, वो कैसे सोचती है, वो क्या चीज़ें देखती है अपने में. चलो आज इस बारे में बात करते हैं. सो आई वेलकम अगेन CA सुधनवा वैद्य. वेलकम सुधनवा. हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी. We'll go for the rapid fire. Sure. Now. Sure. Choose one. Profit or cash flow? Cash flow, always. Growth or stability? Both. Family business or professionally managed? I think a professionally managed family business. Debt or equity? Which is better for company? If you are at a concept level, equity. If you are at a SME level, always debt. Speed or sustainability? Sustainability. Founder-led or system-led? In the initial stages, of course, founder-led, because he lays down the vision. But then, after a certain scale, I think systems are mandatory. You cannot compromise with them. Expansion or optimization? Expansion. Sales growth or profit growth? Profit growth, always. Cost cutting or value creation? Value creation. Cost cutting is never an approach that anybody should take. Intuition or data? A bit of both. Data-driven intuition, I would say. So complete the sentence. A 100 crore entrepreneur always Is on his toes and aware of what is going around him. the biggest mistakes founders make after 10 crores. Trying to breach the 100 crore mark very quickly. There should be sustainability into that. There should be planning into that. Scaling becomes easier when It is backed by systems and technology and percolation of vision throughout the organization. People, process, technology. money should always. Flow easily. A good CFO is One who gives constant and important feedback and helps making strategic decisions. the first sign of financial stress is Lack of liquidity. a business becomes valuable when When its perception in the market changes, uplifts, the future belongs to businesses that. are driven by technology but have their process foundation strong. Okay, I will ask you some statements. Tell me about, is it myth or true? Sure. More turnover means better business. No, this is a myth. Every growing business should diversify. It's a myth. Again, A founder should approve every major decision. absolutely myth. Loans are dangerous. Myth. Governance slows down business. At the outset, it's a myth, but yes, sometimes if too much of reliance or stress is put on governance, then yes, it can slow down the business. Family-owned business can't scale. No, not true at all. It's a myth. Bigger companies take fewer risks. It's a myth. More the risk, more the return is the norm of the market. Profit is enough to judge business. It's not. Never enough to judge a business. Business valuation depends on revenue. Only revenue. Not only revenue, but yes, it's a very important factor of valuation. Okay, I will ask you one scenario. Tell me what you think. Sure. You are appointed CEO of a 15 crore company tomorrow. What's the first thing you do? I go and have a look at their last year's financial statement. I see how these 15 crores were made, what all went into generating this much of business, what is the margin, what is my cash flow position today, and what is my plan for this year. If you had to remove one department for a day, which one would expose the biggest weakness? Finance. What's the one meeting every company should never skip? A daily huddle where all the department heads come together and talk.
if you could give every entrepreneur one financial habit, what it would be? Please review your working capital position at least once a week. एक स्मॉल स्केल और एक मिड साइज कंपनी में, आई विल नॉट टेक द नंबर्स, बट एक स्मॉल स्केल और एक मिड साइज कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? मनी, टेक्नोलॉजी, माइंडसेट या फिर सिस्टम्स? I think all the 4 points that you have mentioned, I think it's a combination of all 4. It is not just about just one factor which is the differentiator between a small scale company or a mid size company. हर एक मिड साइज कंपनी जो आज आप देख रहे हो, कभी ना कभी तो एक स्मॉल स्केल कंपनी थी ही. राइट. क्या बदलाव लाया उन्होंने, या क्या ऐसा किया कि वो स्मॉल स्केल से मिड साइज बन गए? ऐसा नहीं था कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आई, बाकी स्मॉल स्केल कंपनीज के पास कम आई. इफ़ यू एनालाइज इट एज एन ओवरऑल सिनेरियो, मार्केट तो सबके लिए सेम है, सब एक ही मार्केट में एक ही काम के लिए कॉम्पीट कर रहे. तो क्या ऐसा अलग किया इन लोगों ने? तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 फैक्टर्स दैट यू मेंशन्ड, विच वाज मनी, विच वाज टेक्नोलॉजी, विच वाज माइंडसेट एंड विच वाज सिस्टम्स. ओके, आज अगर एक स्मॉल स्केल कंपनी को एक 5 साल में मिड साइज तक पहुंचना है, तो उसको क्या फाइनेंशियली चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए और क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए? अडेप्ट उन्होंने क्या करना चाहिए कि वो अपने पैसे को कितने बार रोटेट कर पाते हैं, इससे उनका स्केल बढ़ेगा. देखो, बैंक्स भी जब आपको फंडिंग करते हैं, वेन एवर बैंक गिव्स यू अ लिमिट, it is always 1/4 or 1/5 of your turnover, of your last year's turnover. A CC limit is given to you, which is 1/4 or 1/5 of your last year's turnover, which means the bank expects you to rotate that money at least 5 times. ओके. उस हिसाब से अगर आप 5 बार उस पैसे को रोटेट करते हो, तो आप जितना टर्नओवर जनरेट करते हो उतना कर पाओगे. ये बैंक का भी बेसिक एक्सपेक्टेशन है. एक एग्जाम्पल अगर रोटेशन ऑफ मनी का दिया जाए, तो आप किसी कैफे में या रेस्टोरेंट में जाते हो, हर एक की फिलोसॉफी अलग अलग है. फास्ट फूड, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो फास्ट फूड ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि आप टेबल टर्नओवर कितना क्विक रखते हो. और फास्ट फूड रेस्टोरेंट, टेबल टर्नओवर मतलब एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट कब सक्सेसफुल होता है? 2 तरह के रेस्टोरेंट्स है. आप किसी लीजर कैफे में या किसी लाउंज में जाते हो, तो आप आराम से बैठते हो, यू विल लाइक टू स्पेंड टाइम देयर, यू विल लाइक टू एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेयर, एंजॉय इट. तो आप एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा रख के जाते हो. तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे चार्ज किया जाता है, क्योंकि आप 1-1.5 घंटा स्पेंड कर रहे हो. आप पैसे उस फूड के या ड्रिंक के नहीं दे रहे हो, आप जो टाइम वहाँ पे यूज कर रहे हो उस जगह का एक्सपीरियंस के दे रहे हो और उस टाइम के दे रहे हो. बट फास्ट फूड में, टेबल टर्नओवर में कैसे रहता है कि मेरे प्रोडक्ट सस्ते हैं. अब एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट आपको 20-25 रुपए में बर्गर्स या फ्राइज या कुछ स्नैक खिला रहा है, तो वो 20-25 रुपए इज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम फॉर हिम. तो उसका प्रॉफिट कहाँ पे बनेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए. तो टेबल टर्नओवर इज फॉर हाउ लॉन्ग इज अ टेबल ऑक्यूपाइड इन अ रेस्टोरेंट. फास्ट फूड में इट हैज टू बी क्विक, 20 मिनट्स नेक्स्ट कस्टमर, 20 मिनट्स नेक्स्ट कस्टमर. बट वही अगर मैं कैफे में जाऊँ, तो उसी 25 रुपए की डिश का मैं 250 रुपए दे रहा हूँ. तो मैं अगर भले ही आधे घंटा, पौन घंटा भी बैठा, तो भी कैफे ओनर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने 10 डिश के पैसे एक ही डिश में से रिकवर कर लिया है. ये स्मॉल टू मिड साइज जाने का जो मैं रोटेशन का फंडा बता रहा हूँ, ये इससे लिंक कर सकते हो आप, कि आपके पास जितना अवेलेबल पैसा है आज बिजनेस में, उसको कितने बार काम पे लगा रहे हो. जितने ज्यादा बार पैसा काम पे लगेगा, उतना आपका स्केल बढ़ेगा, उतना आपका रोटेशन बढ़ेगा. ये हो गया आपका, आई थिंक वी कैन से इट एज एसेट टर्नओवर या फिर कैश रोटेशन. उसके अलावा 5 साल में अगर आपको स्मॉल से मिड साइज में जाना है, तो आपको क्या करना है? तो यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई, या यू विल हैव टू लुक फॉर मोर वेरिएंट्स ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो कि जो मार्केट में एनीवे उसकी डिमांड है, बट फिर क्या आप सिर्फ एक कस्टमर क्लास को अगर केटर कर रहे हो, तो क्या आप उसका सस्ता वर्जन ला सकते हो ताकि आप ज़्यादा मार्केट्स में जा सको, या उसका कोई प्रीमियम वर्जन ला सकते हो जहाँ पे आप अपर स्केल में जाओ, जहाँ पे आप मार्जिन ग्रो करो. स्मॉल टू मिड साइज जाने का यही फंडा है कि या तो यू मैक्सिमाइज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी और यू मैक्सिमाइज ऑन ग्रोथ. ग्रोथ कैन बी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ग्रोथ कैन बी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स. उस हिसाब से अगर आप सोचो, या तो द अदर वे टू गो अराउंड दिस इज डाइवर्सिफिकेशन, कि यू आर इन अ सर्टन मार्केट जिसमें और भी रिक्वायरमेंट्स है, तो वो रिक्वायरमेंट्स जान के यू ट्राई टू केटर टू मोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेम मार्केट, स्टार्ट डाइवर्सिफिकेशन. बट सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे ये बनता है कि आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी लिमिटेशन का आपको, यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ योर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी लिमिटेशंस. यू शुड नॉट गो आफ्टर सच एन अपॉर्चुनिटी कि जिसमें यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू इवन लुक एट दैट अपॉर्चुनिटी और आप ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हो. सो एनालाइजिंग योर एग्जिस्टिंग capability critically and then either going into diversification or more options and variants of the existing product can help you scale up your business. So another differentiator which helps, which I have seen, which is a contributing factor to
growth of a small scale company from a mid-sized company is they consider every cost while costing their product or while calculation of their margins. Now every cost means what? जो कॉस्ट विजिबल है वो तो सभी लोग देख ही रहे हैं, Right. वो तो स्मॉल स्केल वाला भी देख रहा है. ऐसा है नहीं कि मिडिल स्केल वाले को कुछ एक्स्ट्रा विजन है या दिव्य दृष्टि है कि जिस हिसाब से उसको और कॉस्ट दिखते जा रहे. बट ही इज लर्निंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस. He must have, when he was a small scale company some years back, he must have procured raw material at a cheaper price. He would have always fought on the price point, but somewhere along the way, his quality got compromised. After his quality got compromised, he got rejections from customers. Customer rejection is the biggest hindrance to business today. आपका प्रोडक्ट एक बार कस्टमर के पास गया तो डिससेटिस्फैक्शन होना ही नहीं चाहिए. You should be very much conscious about what you are giving to a customer. A simple layman example अगर आपको देना है तो आप रोड साइड ईटरी में भी आपको वही खाना मिल रहा है और एक फैंसी रेस्टोरेंट में भी आपको वही खाना मिल रहा है. डिशेस तो सेम हो ही सकते हैं. पिज़्ज़ा आपको रोड साइड में मिल जाता है, पिज़्ज़ा आपको एक फैंसी इटालियन रेस्टोरेंट में भी मिलता है. बट वाई डू यू प्रेफर टू गोइंग टू अ फैंसी इटालियन रेस्टोरेंट? इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस. इट इज़ बिकॉज यू आर श्योर कि उसने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, उसने जो लोगों ने जो पिज़्ज़ा बनाया है, they have ensured that it is of the best quality that they are giving you. So then you don't mind paying a premium. वही अगर आपने रोड साइड पे पिज़्ज़ा खाया और आपका पेट खराब हो गया तो आपका एक्सपीरियंस तो खराब हो ही गया खाने का और उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा चले गए आपके. तो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन बिजनेस. मेडिसिन कॉस्ट चली गई उसमें, हॉस्पिटल का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा बढ़ गया आपका. तो आपने जो 250 रुपये के पिज़्ज़ा पे 150 रुपया बचाया, वो उसकी जगह आपके 500 रुपये खर्च हो गए. राइट. ये अगर माइंडसेट चेंज करे बिजनेस ओनर तो सी यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग बिग फर्स्ट एंड देन यू बिकम बिग. इट इज नॉट लाइक कि मैं उस लेवल पे जाऊंगा तो फिर वैसे सोचना चालू करूंगा. लाइक इन आवर प्लास्टिक इंडस्ट्री मेनी पीपल आर कंपेयर करते हैं कि अरे यार वो रिसाइकलर तो हम लोगों को इतने में दे रहा है, तू रिसाइकलिंग क्यों कर रहा है? बिकॉज आई एम हमेशा हमारे यहाँ पे ये डिस्कशन होता रहता है कि हम लोग प्राइस घटाए क्या. तो मैंने बोला प्राइस कैसे घटाएंगे? हमारा कंप्लायंस है, हमारा वी हैव टू फॉलो द GRS norms. We are GRS certified company, we are the ISO certified company. हम लोग MPCB कंसेंट लेके चल रहे हैं, उसका ऑडिट है, उसके रिटर्न्स हैं, उसके कंप्लायंसेस है. उस हिसाब से सब करके अगर काम करना है तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही. और वो कॉस्ट के ऊपर हम लोग वी कैन नॉट कम्पीट विद the other recyclers who don't have compliance. Absolutely. Because we have to follow many rules and regulations which they are not following. And a customer, and that's why their overheads are down low. Correct. Compared to us. Correct. But these are not overheads. I feel these are investments. Yeah. This is what you have invested in your business. This is an investment in quality. This is an investment in overall perception of your business. पर वो जब कई कंपनीज करती हैं, so many of the times they said your material is higher in price, so वो हमसे नहीं लेते, बाहर से लेते. बाहर से लेने के बाद वो ये नहीं सोचते कि उसका मटेरियल कभी कभी टाइमली आता है, कभी नहीं आता, उसमें प्रोडक्शन लॉसेस हो जाते हैं, मटेरियल के रिजेक्शन परसेंटेज, इन हाउस रिजेक्शन परसेंटेज बढ़ जाता है, या फिर कभी कुछ कंटेमिनेशन आ गया तो ब्रेकडाउन हो जाता है. ये सब चीज़ें होने के बाद लोग सोचते हैं कि यार वो चीपर है, ये महंगा है, फिर भी उनको परचेस वाला सोचता है नहीं चीपर ही लूंगा, बिकॉज परचेस वाले को टारगेट है तो कितना कम में देगा. बट दे आर नॉट, वहाँ पे कोई होलिस्टिक व्यू ली कॉस्टिंग करता ही नहीं है. करेक्ट. बट ये होलिस्टिक व्यू ऑफ कॉस्टिंग जो लोग करते हैं आज उनके स्केल में और ऐसे सोचने वाले लोगों के स्केल में जो फर्क है वो इसी वजह से है. जो माइंडसेट का मुद्दा आपने शुरुआत में बोला था, 4 points that you raised, mindset was one of this. A mindset determines if you are going to scale up or not. And what about technology? Now technology is like ERP systems हो गए या फिर accounting softwares हो गए. Correct. Technology is a very tricky path. क्या होता है, हमेशा लोगों का आज के दौर में इंडियन बिजनेस सिनेरियो में ये परसेप्शन बन गया है कि हम अगर इफ वी इन्वेस्ट इन बेटर टेक्नोलॉजी वी विल स्केल अप क्विकली. It is very important. It is an integral part of scaling up. But it does not necessarily mean कि आपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया मतलब आप स्केल अप कर पाओगे. First, you will have to look at your business from a third person point of view or hire someone to audit your existing processes. See, there is financial audit, there is legal audit,
ड्यू डिलिजेंस हर प्रकार का होता है, बट प्रोसेस ड्यू डिलिजेंस करना आज के दौर में आपके बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोसेसेस आपके बिजनेस में लैकिंग है या कौन से प्रोसेसेस बेटर किए जा सकते हैं. एंड वंस अ प्रोसेस ब्लूप्रिंट ऑफ योर बिजनेस इज रेडी, दैट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. So, if the foundation is very clean and clear in your mind, then you will be able to be in a better position to decide कि मैं कौन सा ERP सॉफ्टवेयर लूँ या मैं कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपने बिजनेस के लिए लूँ. ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि somebody is selling you a branded software which is costing lakhs of rupees और आप उसके तरफ जा रहे हो just with the illusion कि you will be scaling up. बट आपकी टीम को वो सॉफ्टवेयर समझ ही नहीं आया, आपका प्रोसेस उतना रोबस्ट है ही नहीं कि वो उस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से रूट किया जा सकता है. तो देन दैट मनी इज गोइंग डाउन द ड्रेन. टेक्नोलॉजी इज एन इन्वेस्टमेंट, बट दैट शुड बी मेड इन एन इंटेलिजेंट वे. स्मॉल स्केल से मिड साइज कंपनी जाते वक्त माइंड फाउंडर चेंज होता है या होने के वजह से मतलब नॉट फिजिकली बट फाउंडर की माइंडसेट चेंज होने की वजह से वो स्मॉल से मिड साइज में जाते हैं, या स्मॉल से मिड साइज में गए इसके लिए फाउंडर का माइंडसेट चेंज हो गया? नहीं, फाउंडर का माइंडसेट चेंज हुए बिना आप स्केल अप कर ही नहीं सकते. आपको पहले यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग बिग, यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन अ वे कि आप एक बड़ी कॉरपोरेशन हो, उसके बाद ही आप बड़ी कॉरपोरेशन बना सकते हो. अगर आप, मैंने जैसे रोड साइड इटरी का एग्जाम्पल दिया, कल को मैं आपको एक बड़ा सा कैफे बना के दे दूँ, 1000 स्क्वायर फीट कैफे विद द स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीरियर, विद इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड्स बेस्ट शेफ्स. पर अगर आपका माइंडसेट एक रोड साइड इटरी का है तो आप उसमें रोड साइड इटरी की तरह ही सोचोगे. तो वो परसेप्शन आपके कस्टमर में, कभी आप खुद में ही नहीं है आप में, तो आप कस्टमर में कैसे लाओगे? तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट. सो हाउ द मिड साइज पर्सन और 100 करोड़ कंपनी फाउंडर थिंक्स अबाउट मनी? 100 crore company founder thinks about money as an incidental benefit, an incidental reward. He will first think about what the customer should perceive my brand as, how my product should be accepted in the market, what all, मेरी कंपनी का नाम आने के बाद लोगों के दिमाग में क्या सोचना चाहिए लोगों ने मेरी कंपनी के बारे में, पहले वो उसके बारे में सोचेगा. ही विल क्रिएट अ विजन फॉर दैट. अगर वो विजन उसने अचीव कर लिया तो मनी इज गोइंग टू फ्लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे what people think of you, they will invest on their perception about you, और उसी से पैसा बनेगा. What is the importance of governance? Governance is, I feel, one of the most important factors that is coming to the forefront these days. So what it means into SME? So for SMEs, governance is basically having a framework in your organization. The founder or the owner should have a framework of ensuring that certain things which are non-negotiable are always promptly taken care of. For example, SMEs के लिए अगर बात की जाए तो compliances. SMEs cannot afford to miss out on compliances or lose out on compliances. Due date miss हो गया, penalty लग गई. SMEs के जो margins है वो इसी चीज़ से बनते हैं. You cannot be, so एक governance framework ऐसा होना चाहिए कि हम कभी ड्यू डेट मिस नहीं करेंगे, हम हमेशा टाइम पे लाइबिलिटी पे कर देंगे. या क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. वी विल एंश्योर दैट वी आर एडहरिंग टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड विच आइदर यू कैन अडेप्ट फ्रॉम अ बिगर कंपनी और यू कैन सेट योर ओन. दैट इज अप टू यू. बट वो आपको एंश्योर करने के बाद ही आप स्केल अप कर पाओगे. Okay. आप सिर्फ अगर प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ आप रेवेन्यू पे फोकस कर रहे हो, या आप मार्जिन पे भी फोकस कर रहे हो, बट अगर ये अलाइड एंगल्स ऑफ बिजनेस पे आपका ध्यान नहीं है तो एट द एंड ऑफ द डे आप स्केल अप नहीं हो पाओगे. यू विल स्केल अप टू अ सर्टेन लेवल, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ अचीव कर लोगे 5% 6% की, एंड यू विल बी हैप्पी डूइंग दैट. Can you elaborate? सो टू एलैबोरेट मोर अपॉन दिस, आपने जैसे टेक्नोलॉजी की बात की, हमने विजन की बात की, हमने माइंडसेट की बात की, वैसे ही एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, वन ऑफ द क्रिटिकल पिलर्स ऑफ बिजनेस इज पीपल. सो पीपल अलाइनिंग विद द स्ट्रेटेजी ऑफ द ओनर इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसी से स्केल अप हो पाएगा. अगर आप कल से सोचने लगे कि आप एक 100 करोड़ की कंपनी हो पर आपका एम्प्लॉय आज भी 5 करोड़ की कंपनी की तरह ही सोच रहा है, तो आप कभी 100 करोड़ बन नहीं पाओगे, क्योंकि आप जाके हर काम तो नहीं कर सकते, काम तो उसी से करवाना है आपको. तो परकोलेटिंग योर विजन टू योर टीम, गेटिंग देम टुगेदर, मेकिंग देम अंडरस्टैंड दैट व्हाट, हम इस कंपनी को कहाँ ले जाना चाहते हैं, व्हाट इज द विजन ऑफ द कंपनी, वेयर डू वी सी आवरसेल्व्स 3 years from now, 5 years from now, and most importantly, how is that individual person important to the company and how his contribution is critical. ये अगर आप उसको कन्विंस कर पाए तो ही उसका माइंडसेट बदलेगा.
आप बहुत बड़ा विजन स्टेटमेंट लेके भी उसके पास गए तो भी वो यही सोचेगा यार इसमें मेरा क्या फायदा, इनकी कंपनी बड़ी हो रही है, मेरे को तो वही ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट मिलने वाला है। बट उसकी जो वैल्यू बढ़ रही है, उसका जो सीवीज में उसके सीवी में जो एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल्स उसके बढ़ रहे हैं, ये सारी जो क्रिएशन ऑफ वैल्यू हो रहा है एट द होल ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये द ओनर शुड परकोलेट इट डाउन स्ट्रीम टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, देन ओनली द कंपनी स्केल्स अप, द माइंडसेट स्केल्स अप। इन सब में कंपनी ने सीएफओ कब रखना चाहिए? मेरे हिसाब से कंपनी ने सीएफओ डे 1 से रखना ज़रूरी है। बट ठीक है, लोगों को लगता है कि सीएफओ इज़ अ कॉस्ट, बट पीपल डोंट सी द वैल्यू। बट आप एक सर्टन टर्नओवर के पास, आई बिलीव एनीबडी हु हैज़ क्रॉस्ड एटलीस्ट द 1 crore turnover mark should mandatorily have a CFO. Why? Everybody thinks they have a finance team, they have an accountant, उनका डेटा लॉग हो रहा है, सारी एंट्रीज टाइम पे हो रही है, बट उस डेटा का आप कर क्या रहे हो? आर यू टेकिंग फीडबैक फ्रॉम इट? जैसे यू हैव अ ब्रॉडर विजन, जैसे मैंने अभी बताया कि आप एक बड़ा विजन लेके चल रहे हो, एक 100 करोड़ की कंपनी बनने का, 200 करोड़ की कंपनी बनने का, बट क्या आपका फाइनेंस उस हिसाब से अलाइंड है? क्या आपका डेटा वो फीडबैक आपको दे रहा है जो आप सोच रहे हो? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। What are the financial reports we should review weekly? The weekly financial reports में you should review your revenue. जो मिड साइज या 100 करोड़ कंपनी करती है वो क्या रहता है? At the beginning of the week they set a target for revenue for example. तो महीने वो इस हफ्ते में कितना रेवेन्यू टारगेट अचीव करेंगे वर्सेस कितना एक्चुअल हुआ, उसका रिव्यू लिया जाता है। These companies usually on a monthly basis create budgets for certain costs. वो बजट हर वीक में रिव्यू किया जाता है कि मैंने इस खर्चे के लिए 100 रुपये अलॉट करके रखा था, आज तक मैंने कितना खर्च किया उसमें से, क्या मैं उसको ओवरशूट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ऑल्सो ऑन अ वीकली बेसिस व्हाट वर द अपॉर्चुनिटीज दैट वर लॉस्ट, व्हाई वर दे लॉस्ट, व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर टू केटर टू दैट अपॉर्चुनिटी, और जो अपॉर्चुनिटीज हमने केटर कर ली उसमें हमने क्या कमाया और क्या गवाया। ये अगर वीकली बेसिस पे आप रिव्यू कर लोगे तो आपका स्केल अप जर्नी स्टार्ट हो गया। इन चीज़ों में स्केलिंग में टिपिकली क्या मिस्टेक्स हो सकती है जो अवॉइड करना चाहिए? सबसे बड़ी मिस्टेक ये सकती है स्केलिंग टू फास्ट। यू आर ट्राइंग टू बीट टाइम, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर स्केल करना है तो वो प्लानिंग के साथ ही करना पड़ता है, या तो आपके ऐसा भी होता है कभी कभी कि किसी के बिजनेस में somebody gets a big opportunity जहाँ से एक्सपोनेंशियल स्केल अप हो सकता है, बट उस एक्सपोनेंशियल स्केल अप के लिए भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि आप उस एक्सपोनेंशियल स्केल अप को मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस सिनेरियो से ही मैं केटर करूंगा, ये आप नहीं सोच सकते। आप एक कंपनी हो जो साल का 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो और आपको एक ही ऑर्डर आ गया 20 करोड़ रुपए का, आप उसको एग्जिस्टिंग सिनेरियो में केटर नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू थिंक डिफरेंटली, यू विल हैव टू थिंक ऑफ इट एज अ प्रोजेक्ट, अ सेपरेट बिजनेस की तरह उसको सोचो। उसका फंडिंग कहाँ से आएगा, उतनी ऑर्डर क्वांटिटी मैं कहाँ से केटर करूँगा, मेरी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उतनी है या मैं बाहर से आउटसोर्स करवा के इसको करवा लूँगा, अगर आउटसोर्स करवाऊँगा तो उसमें क्वालिटी कॉन्शियसनेस कैसे इनकलकेट करूँगा। ये सारी चीज़ें सोचना ज़रूरी है। स्केल अप ओवरनाइट नहीं हो सकता। आप जो माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ भी माइंडसेट बड़ा रखना ज़रूरी है, बट विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड विथ प्रॉपर execution of that planning. At closing, I will ask you, if you are mentoring somebody, a startup or a businessman, what one habit you would like to ask him to adopt for next 25 years? I think it's a principle which I myself live by, is basically any action that you take for your business tomorrow or in life has consequences. I'm not saying consequences should stop you from taking action, but you should be aware of the consequences of your action. You should not live in oblivion thinking that any action I take today will not have consequences or will always have manageable consequences. So if awareness is there, I think you're good to go. Okay. Thank you, Sudhanva. We'll have another conversation about, there are many business finance subjects are pending. So thank you very much for today. And thank you for sharing your wisdom and finance knowledge with us. Thank you for having me.